Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. And today we are back again with another video. So without wasting any further time, let us quickly begin. Problems हम सबको होती है, right? Even if I am a customer or I am a supplier, I will face problems. The problems may range from low complexity to high complexity. चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वी विल फेस प्रॉब्लम्स, राइट? द प्रॉब्लम्स मे बी वन टाइम अकरेंस, रिपीट प्रॉब्लम्स और मे बी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स. सो एवरी प्रॉब्लम कम्स लाइक एन इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन वेरी कॉमन एस्पेक्ट जो इफ यू आर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपकी डे टू डे लाइफ में भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इज गुड, देन आपको प्रॉब्लम होगी नहीं. One of the most common mistakes that we all do is, एक बार मुझे रूट कॉज पता चल जाता है, then उसके बाद भी I see a lot of cases where people take actions based on symptoms rather than root causes. अगर आप symptoms पे action लोगे, then there is a possibility that आपका problem for some time it may not come back again. But in future it will for sure. Because we are not focusing on eliminating the root cause. And this is a very common mistake that all of us mostly do. जब बात प्रॉब्लम सॉल्विंग की आती है, देर आर मल्टीपल वेज अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब. सम पीपल कॉल इट फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सम पीपल कॉल इट इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सम पीपल कॉल इट होलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग. बट वी नीड टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज, राइट? ऐसी मेथडोलॉजीज विच आर कॉमन अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, इट शुड बी कॉमन. एंड सेम थॉट प्रोसेस से अगर हम काम करें, देन आवर प्रॉब्लम्स गेट फिक्स्ड. So there would be, slightly changes here and there. Some problem solving methodologies would be specific to some organization and some may not be. In that particular case, we should focus on the global problem solving methodologies which are used across the globe. This will help us stay competitive across the market and also solve our problems in a structured approach. A common problem solving process basically involves 7 key steps, which are 1. Defining the problem, 2. Analyzing the problem, 3. Establishing criteria, 4. Considering possible solutions, 5. Deciding upon the solutions, which solution to implement and which to not, 6th. Further implement solutions, and 7th. Following up on the solution. Let us go one step deep. अभी तक we discussed about common problem solving method. Now let us understand a structured root cause analysis approach. And before we proceed, we should understand what root cause analysis is. So root cause analysis is a systematic analysis to uncover the fundamental or deep-seated causes of an incident, failure, or a problem. And this basically happens in 6 steps. Number 1, we define the problem. 2, we assemble as much data as we can because this data helps us to create a baseline on the basis of which we analyze. And then 3rd, we locate or identify the root causes. 4th, once I identify the root cause, I can find the corrective and preventive actions to fix it. 5, we can then create actionable strategies to implement the solution. And 6th, we can monitor the solution and check if the solution is working or not, if my problem is eliminated or not. This is also called effectiveness monitoring. So based on the same structure or based on the same thought, there are basically 4 different types of problem solving methodologies which are used across the globe. They basically are 1, PDCA, that is plan, do, check, act. It is a 4-step problem solving methodology. Second is the DMAC approach. This is linked with Six Sigma. This is a 5-step problem solving methodology which involves define, measure, analyze, improve and control. Then we have an 8D problem solving methodology. It basically focuses on 8 steps to eliminate problem. And then we have an A3 methodology. A3 basically because the report comes on the A3 sheet of a paper. This is a 4-step methodology again. So it doesn't matter which of these 4 you use in your organization, the structure, the thought process, the concept basically remains the same. As discussed earlier in the video, we would have now understood that it is very important to plug the root causes. So if we do not plug the root causes, the problem will come again and again and we will feel frustrated, demotivated and will not be able to understand why my problem is repeating again and again. But the reason is simple. We did not fix the root cause. With the tons of experience we have, usually most of us figure out the correct root cause.
and there isn't too much problem in identifying root cause. Mostly I have seen that you will identify the correct root cause, but the solutions taken to eliminate the root causes are not correct, which finally results into the problem coming again and again. So today in this video we are going to talk about how to fix a particular root cause. Now let us assume that we have the root cause. ठीक है, हमारे पास root cause है and we need to fix it. How do we fix it? तो अब हम जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे उसे बोलते हैं how डायग्राम. राइट आपने why एनालिसिस के बारे में सुना होगा कि हम बार बार why करके हम रूट कॉज पे पहुंचते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ऑन how डायग्राम. ये क्या होता है and how does it work, right? So the first step is to understand what is how diagram. So once you have discovered why a problem occurs, you then need to find a permanent solution to the problem, right? In many cases, we don't even need to analyze the root cause of a problem because we know it by our experience. So we just need to solve the problem right away. And these are basically the quick wins or the low hanging fruits or large projects that may involve capital expenditure. So once I note the root cause, I will make use of the how diagram to identify possible solutions. And किस solution से मैं अपने root cause को permanently fix कर सकता हूँ, I will be able to figure out and we'll understand how. So let us take some examples that, after reviewing a process, we may have identified some non-value added activities that I want to reduce or eliminate. So this is one of a problem जहाँ पर मैं how diagram को use कर सकता हूँ. There are many other examples as well, like I need to modify a procedure, I need to train employees, I maybe need to improve management reports, I need to have an error-proof process, I need to change workplace layout, and I need to have some infrastructural initiatives. So these are some of the few examples where I can make use of the how diagram. Let us understand a bit more in detail. So how diagram is used when seeking a practical solution to a problem. मतलब हमारे पास problem है, हमारे पास root cause है and we are seeking a practical solution, तो हमें ये diagram use करना चाहिए. We should use a how diagram. Second, ये कैसे काम करता है? हम बार बार एक ही question पूछते हैं repeatedly. We repeatedly ask the same question again and again, that is how can this be solved? फॉर एग्जाम्पल why में हम एक कॉमन क्वेश्चन पूछते थे, why did this occur, तो हम रूट कॉज तक पहुंचते थे. नाउ अब हम क्वेश्चन पूछेंगे how can this be solved, है ना. हम इसको रिपीटेडली पूछते जाएंगे तब तक जब तक हमें फाइनल सोल्यूशन नहीं मिल जाता. तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. थर्ड, it provides an effective structure for organizing and sequencing possible solutions as well as rewards and risks associated with each option. तो इसमें क्या होता है, ये हमें एक effective structure बनाने में help करता है. For example, if you see the diagram here, so इसमें blue color is my root cause, है ना. उसको फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, what are the options available और how can I solve it. So I got two solutions. Now again first solution में I asked a question, how can this be solved, so I again got टू सॉल्यूशंस. तो इसमें क्या है कि हर दो सॉल्यूशंस के बीच का रिलेशन भी मुझे समझ में आ गया. एंड जब मैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो वाई एनालिसिस में व्हाट डू वी डू, फॉर वन प्रॉब्लम वी आस्क मल्टीपल वाइज, राइट. सो हमारे पास फर्स्ट वाई 2 या 3 फर्स्ट वाई आ जाते हैं, तो हम फिर एक एक करके दोनों वाइज को टेस्ट करके वैलिड या इनवैलिड कर देते हैं और इनवैलिड को वहीं स्टॉप कर देते हैं और वैलिड कॉज के साथ हम आगे बढ़ते हैं. एग्जैक्टली यहां पर भी हम यही करते हैं. अगर कोई सोल्यूशन मुझे ऐसा आइडेंटिफाई होता है जो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, फिजिबल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को वहीं पे स्टॉप करके हम बाकी ब्रांचेस के साथ आगे बढ़ते हैं. तो एक शीट ऑफ पेपर में या एक गो में मेरे को पूरा ओवरव्यू मिल जाता है. टू फिक्स दिस प्रॉब्लम मुझे ये स्टेप्स करने होंगे जो नॉर्मल एक्शन टेकन रिपोर्ट या एटीआर रिपोर्ट में हमें नहीं मिलता. And at each stage there might be multiple answers to how questions and the result is a hierarchical T structure, right? Tree structure, right? तो इसमें क्या है कि हर स्टेज पे मल्टीपल बार जब हम पूछेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस होंगे, तो हमें क्या होगा, एक ट्री फॉर्म में स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड ये मुझे एक लॉजिकल चेन दिखाएगा, लॉजिकल लिंकेज दिखाएगा. कैसे रूट कॉज फिक्स करने के लिए मैं ये करूंगा, ये करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए. सो दिस बिकम्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड सीरीज ऑफ आंसर्स. तो इससे मैं इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंडिंग कर सकता हूं. नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हाउ डायग्राम, कब यूज करना चाहिए, यूज करने से क्या एडवांटेजेस हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें हाउ डायग्राम बनाना कैसे है. सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली, देन राइट इट ऑन अ पोस्टेड कार्ड. सो पोस्टेड कार्ड
नॉर्मल स्टिकी नोट होता है, आप अपने स्टिकी नोट पे अपने रूट कॉज को मेंशन कीजिए जिसे आपको फिक्स करना है, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज आप एक लार्ज वर्क एरिया में, एक लार्ज वॉल पे या एक बड़े से नोटिस बोर्ड में इसको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में पेस्ट कर दीजिए. नाउ द टीम विल कम टू नो कि ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम सारे लोग कलेक्ट हुए हैं एक साथ. ठीक है, नाउ आई एम द कोऑर्डिनेटर, सो देयर वुड बी वन कोऑर्डिनेटर. नाउ आई विल आस्क टू माई टीम हाउ विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व. ठीक है, सो 5-6 लोग 10 लोग जो भी हमारी टीम है उन सबके पास स्टिकी नोट्स होंगे, तो वो उसमें मेंशन करेंगे क्या सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके हम इसे ठीक कर सकते हैं, है ना, जो भी नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा. तो लेट अस से 4 ब्रांचेस आ गए, तो वो जो स्टिकी नोट देंगे उसको फिर उसके नेक्स्ट कॉलम में मैं पेस्ट कर दूंगा. ठीक है, सो लेट द टीम राइट देयर आंसर्स ऑन अ पोस्ट इट एंड देन स्टिक देम अप. सो सबसे पहले मैंने अपना पहला जो कार्ड लगाया प्रॉब्लम का, देन उसके बाद 2, 3, 4 जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो मेरा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा, एंड वहां पर मैं मेंशन कर दूंगा कि ये मेरे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं. अभी मैं कोई एरो नहीं लगाऊंगा कि फर्स्ट से कितने ब्रांचेस निकले, बिकॉज जब मैं आगे जाऊंगा तो ये और फर्दर डिवाइड होंगे. तो एक बार पहले मैं सारे कार्ड्स को पेस्ट कर देता हूं, फिर मैं एरो लगाकर उसको लिंक कर दूंगा कि ये सॉल्व करने के लिए ये करना होगा, ये सॉल्व करने के लिए ये 2 चीजें करनी होंगी, एंड दिस इज हाउ इट विल गो. नेक्स्ट इज रिपीट दिस सीक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम वंस मोर. तो अब जो फर्स्ट स्टेप आपका प्रॉब्लम था रूट कॉज, अब वो प्रॉब्लम नहीं था, अब हम सेकंड स्टेप में आ गए. अब मैंने 3 फॉर एग्जांपल 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर लिए. तो अब ये पॉसिबल सॉल्यूशंस मेरी प्रॉब्लम बन गए कि इनको कैसे करूं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन दिस बी सॉल्व. तो फिर इन 3 के अगेंस्ट में मुझे और 2-3 सॉल्यूशंस मिलेंगे. अगेन टीम विल राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उस पीस ऑफ पेपर को मैं पेस्ट कर दूंगा. सो कीप आस्किंग हाउ अंटिल यू हैव नो मोर क्वेश्चंस और यू आर सेटिस्फाइड विद द इंप्रूवमेंट आइडिया. आप तब तक पूछते रहिए जब तक आपके पास या तो सारे आंसर्स खत्म हो जाए या फिर आप सेटिस्फाई हो जाए कि ओके दिस इज द इंप्रूवमेंट आइडिया जिससे मेरा काम हो जाएगा. एंड जब मेरे पास ये पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा, देन मैं अपने सॉल्यूशंस को प्रायोरिटाइज कर सकता हूं बेसिस कॉस्ट, बेसिस कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिस इजीनेस टू इंप्लीमेंट, एंड उसके बाद मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा. देन माई रूट कॉज विल बी एलिमिनेटेड. अभी तक हमने जो डिस्कस किया दैट वाज थ्योरेटिकल. लेट अस सी समथिंग इन प्रैक्टिकल. सो जो आपको वीडियो में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर बेसिकली इंडिकेट्स हाउ डायग्राम लुक्स लाइक. तो आप देखिए द फर्स्ट पार्ट इज द गोल और द ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम रूट कॉज को मेंशन करके अपने कार्ड को प्लेस करेंगे. देन नेक्स्ट इज आई विल आस्क माई टीम हाउ विल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो टीम विल कम बैक टू मी विद आंसर्स, एंड इस केस में लेट अस से कि 3 आंसर्स टीम ने आइडेंटिफाई कर लिए कि अगर मैं ये 3 काम करूंगा तो रूट कॉज एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ अगेन मैं इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा हाउ विल आई फिक्स सोल्यूशन नंबर 1, और हाउ विल आई फिक्स सोल्यूशन नंबर 2, और हाउ विल आई इंप्लीमेंट सोल्यूशन नंबर 3. देन माई टीम विल कम अप विद some options. So let us say first के लिए 2 solutions आए, second के लिए 1 आया, third के लिए we had 2 solutions, right? Again my question would come, how will I solve this problem? I'll go to next. वहां पे और multiple solutions आएंगे, तो I'll keep on continuing this तब तक till the time I found the most satisfying answer which is practically going to solve my problem or I have no answers left. एक बार मेरा ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, देन आई हैव द एंटायर ट्री अवेलेबल कि अगर मैं इस ब्रांच को फिक्स करूंगा तो ये ऐसे ऐसे करके मेरे प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देगा. देन एज अ टीम वी ऑल कैन डिसाइड विच सोल्यूशन कैन और सोल्यूशन वी शुड ऑप्ट फॉर. नाउ लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सो इस केस में माय प्रॉब्लम इज that my service frequency is very low. So what I need to do, I need to increase the service frequency. So I made a card, I placed it in the wall on the extreme left side. फिर मैंने अपनी टीम से पूछा how will I solve this? So what the team said was, team gave me 3 answers. The first answer was responsibility should be clearly identified, get service contract, in-house maintenance. आप यहां पे देखेंगे देयर इज एन और रिटन. और का मतलब है या तो मैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लूं या इन हाउस मेंटेनेंस कर लूं, दोनों को करने की जरूरत नहीं है, ये टीम का डिसीजन था, राइट? तो आप जहां जहां और देखेंगे मतलब या तो आप ये करिए इंप्लीमेंट या ये करिए इंप्लीमेंट, एंड जहां जहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब हमें ये दोनों करना चाहिए, राइट? सो आई हैव practically 2 options available. Either I will go with clear responsibility and service contract, or I will go with clear responsibility and in-house maintenance, right? Now my next question is how will I solve this? So अब मैं क्या करूंगा? Now I'll again ask this question to my team and my team will get back to me with some answers, right? So I wrote the answers down. So answers are for clear responsibilities 1, मैनेजमेंट में एक ओनर आइडेंटिफाई करो जो इस प्रॉब्लम को ओन करेगा. सेकेंड,
एक बार ओन हो गया, देन एलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दोनों को साथ में करना होगा, सिर्फ एक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एलोकेट कर दूं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इस प्रॉब्लम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा सोल्यूशन की, तो वो वैसे भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, राइट? And same goes for the next, and then it goes for the third one. For example, in-house maintenance के लिए what I need to do, I need to identify one engineer for this. Engineer identify कर लूंगा तो मैं in-house maintenance भी करा लूंगा. Now my next question is, how am I going to solve this? So team came up with the next level of answers. ओनर मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा स्टाफ में से किसी को आइडेंटिफाई करें, राइट? आइडेंटिफाई इंजीनियर में वी सॉ कि हम ट्रेनिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ट्रेनिंग की जरूरत है, एग्जिस्टिंग से ही काम चल जाएगा। और यहां पर और नहीं है, ध्यान से, यहां पर एंड है। तो हम पहले ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और इंजीनियर को ट्रेन करेंगे, तो मेरा इंजीनियर रेडी हो जाएगा, राइट? एंड फिर ट्रेनिंग आगे चला गया, या तो आप एक्सटर्नली ट्रेन करो या इंटरनली ट्रेन करो, या आप मैनुअल से देख के समझ लो। सो मेरे पास अब ये रेडी हो गया, एंड वंस दिस इज रेडी, आई हैव द इंटायर ट्री अवेलेबल। नाउ द टीम कैन जॉइंटली डिसाइड हमें कौन सा वाला मेथड या कौन सा वाला ब्रांचिंग फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू आई कैन एलिमिनेट माई रूट कॉज, है ना? सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो क्विकली हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर माई प्रॉब्लम इज आई नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम इज हाई एनर्जी कंजम्पशन, राइट? सो यहां पे क्या हुआ, मैंने अपने कार्ड में लिखा, लेफ्ट में पेस्ट कर दिया। आई आस्क्ड माई टीम हाउ टू फिक्स इट। टीम केम अप विद 2 आंसर्स। हमें एनर्जी मॉनिटरिंग इंप्रूव करनी चाहिए, वी शुड इंप्रूव एनर्जी मॉनिटरिंग, एंड सेकेंड वी चेंज अवन बर्नर टाइप। जो हम बर्नर यूज कर रहे हैं अवन में, उसका टाइप हमें चेंज करना चाहिए। नाउ अगेन माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम कि मैं इसे कैसे फिक्स करूं। अगेन आई हैड 4 आंसर्स एंड मैंने इनको मेंशन कर लिया, एंड वंस आई रोट देम, मैं एक एक आंसर्स को वैलिडेट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा भी कि नहीं करेगा, हाउ थिंग्स आर टू बी मैनेज्ड। एंड उसके बाद वंस आई फिगर आउट कि मुझे कौन सा वे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू इंप्रूव मॉनिटरिंग एनर्जी, एंड वो करने के लिए मुझे तीनों एक्टिविटीज करनी है। दिस ब्रांच सूट्स मी द बेस्ट, सो आई विल प्लान माई एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस सो दैट माई रूट कॉज गेट्स एलिमिनेटेड। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल क्विकली। सो दिस इज अ सिचुएशन, या यहां पर क्या है, हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है हाई स्पॉइलेज, राइट? सो माई प्रॉब्लम इज मुझे रिड्यूस करना है अपने स्पॉइलेज को, सो आई नीड टू आइडेंटिफाई वेज टू रिड्यूस स्पॉइलेज। सो मैंने अपने स्टिकी नोट में लिखकर पेस्ट कर दिया हाई स्पॉइलेज। नाउ मैं अपनी टीम से क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ हाई स्पॉइलेज? सो ये मैंने पेस्ट कर दिया। माई आंसर्स दैट टीममेट्स गेव मी वर ब्रेकडाउन रिड्यूस करो, चेंज ओवर टाइम रिड्यूस करो, एंड क्लियर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करो। आप ध्यान दो, यहाँ पे देयर इज नो और रिटन, मतलब हमें तीनों करना है, ठीक है? अगेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन टू माय टीम, हाउ विल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो पहला क्वेश्चन था मेरे लिए ब्रेकडाउन के लिए, देन चेंज ओवर टाइम के लिए, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। सो वंस आई आस्क्ड क्वेश्चंस, आई केम विद अनदर सेट ऑफ आंसर्स, ठीक है? कि रिड्यूस ब्रेकडाउन में क्या आ गया, अब ब्रेकडाउन को एनालाइज करो, क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, कितनी बार आया है, एंड हमें पता चल जाएगा ब्रेकडाउन के पीछे का लॉजिक है। सेकेंड, आई विल ट्रेन माई ऑपरेटर्स, ठीक है? अब ट्रेन ऑपरेटर्स का ब्रांच, अब आप नेक्स्ट देखो, जब आप नेक्स्ट पे जाता हूं, यहां पर और है, सो आई कैन गो फॉर इंटरनल ट्रेनिंग और आई कैन गो फॉर अ थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ट्रेनिंग। सो वंस आई हैव दिस शीट इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई कैन क्लियरली फिगर आउट विच इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस, जिसको एक आई कैन डू इट, दो इन्वॉल्व्स लीस्ट कॉस्ट, थर्ड लेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कॉम्बिनेशन है सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स में जनरली करते हैं। तो वंस आई हैव दिस एंटायर ट्री अवेलेबल, तो टीम विजुअलाइज कर सकती है कि ओके, दिस इज हाउ इफ आई वर्क और इफ आई एक्ट, माई प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड। सो दिस इज द रीजन ये काफी अच्छा टूल है फॉर सोल्यूशन फाइंडिंग। जिस तरीके से हम एक बार वाई कर देते हैं तो पूरे प्रॉब्लम का जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मेरे पास 1 पेज में आ जाता है, उसी तरीके से सोल्यूशनिंग के लिए भी दिस डायग्राम हेल्प्स मी इंप्लीमेंट दिस इन 1 पेज। Let us have some few more key informations about how diagram before we wind up this video. 1. It is similar to 5 whys, but a different question is asked, and this is an adaptation of root cause analysis. आप एक तरीके से कह लो आपने horizontally deploy कर दिया, आप एक तरीके का activity root cause analysis में करते थे, आपने बस उसका horizontal deployment solutioning में भी कर दिया, right? Second, it is specially useful when creating or exploring a plan of action. तो हम इसे कब सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, जब हमें या तो क्रिएट करना हो या वी आर एक्सप्लोरिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट,
It helps us break down the solution into more explicit elements. कई बारी क्या होता है, I have a macro solution, but how I need to do it मुझे नहीं पता होता. So this helps me break down the solution into more explicit elements. Next, it shows a range of possible solutions all in one place. ये इसका सबसे advantageous point है कि एक पेज पे सारे solutions को plot कर देता है. Then anybody, चाहे मैं हूँ, it is my reporting manager or his reporting manager or the entire team can view this on one page and take decision accordingly. So I believe आपको ये concept काफी अच्छा लगा होगा. मुझे personally ये बहुत अच्छा लगता है. And अगर आप इस पे काम करोगे, इसका यूज करोगे, तो जिस तरीके से वाई वाई करके आप रूट कॉज जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसी तरीके से हाउ हाउ डायग्राम यूज करके आप सोल्यूशन और जल्दी से आइडेंटिफाई कर लोगे. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा. इफ यू फाइंड द कंटेंट मीनिंगफुल, please like the video and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon to stay tuned to the latest updates, and feel free to share the video with your friends. You can also follow us on Instagram and Facebook. So we will be back again with another unique concept. Until then, stay tuned and bye-bye.